absolute or relative. Absolute polar, we don't have the we don't follow the absolute polar. We will follow the relative polar Cartesian coordinate system. Okay. So what's we did about the absolute as well as the relative Cartesian coordinate system, isn't it? In our last class, in our previous class. So is it clear? Is there any doubt in the previous class? The sketches regarding the sketches, how to do the sketches? Is there any problem? So we can proceed to the No, next sir. topic. We should proceed to the next topic. So we are Yes. proceeding. It's about relative polar coordinate system. Polar. Whenever you heard about the polar, it will elaborate about the angular things. Wherever there is angle, you have to do the polar. Okay. See here in these cases where my cursor is being moving. It's given here 45 degree 30 distance. It's the length of the line and as well as the angle has been provided in the line. So how to create the line using the angle? Okay. So first of all, where to start the sketch? Which one will be your starting point? Certainly from this point only, because from here the sketches have been all the dimensions have been created from this point only, because the length of this line has been not been provided, isn't it? Means if we start the sketch from here and we come to this point, then we can certainly join the sketch, isn't it? We don't need any dimensions or any other things, as well as in the before sketch it is being provided that it is the length of the line is 30, isn't it? So we will start from here. So first of all, whenever we go to this AutoCAD, we just check out whether it is in absolute Cartesian or not. Enter, just DS enter and go to the dynamic settings and dynamic input and go to the settings and check whether it is real, absolute and Cartesian format. Okay. So we mean to say that we will the workspace will be in absolute Cartesian format. Okay. But we will do the relative polar. Okay. So how to do that? So first of all, we should start with the line, isn't it? It's all about line related to line. So start with the line L enter, and what will be the first point? That will be 0, 0, isn't it? Okay. So next, what will be the next coordinate here? What will be the next coordinate in the absolute? 50, 50, 0. 50, 50, 0. 0. Okay. That will be 50, 0. Enter. And whenever you do the relative, we mean to say that whenever we learn the relative, it means the origin will come to this place, isn't it? We have learned that only from the relative in our previous class, that the whenever the origins will change whenever we use the at the rate, isn't it? So at the rate, so here it's provided the length as well as the angle. How to create the angle means the angle will start from, what's the angle? This is 0 degree, isn't it? This is 0, this is 90, this is 180, and the down portion is 270, isn't it? And back to the 0 means it is 360. Means all total is a 360 degree, isn't it? Either 360 or 0. It's same. It is same. So we should what's the command? How to use the angular? Just give the at the rate. Okay, just give at the rate and give the length of the line. What is the length of the line? It's 30, isn't it? 30. And about how to give the angle, it's 0 to 45. This is the gapping angle is being given 45. So at greater than, give the greater sign. Greater than. Okay. 30 greater than the angle. Can you see the along with the specific next point, my cursor, there is being given the after giving the greater than, the angle has been provided. Can you see the 50, 50, 49, 47, 53, 60 angle is being given? So we have to give the 45 degree angle. Just enter it out. Okay. So the formula is at the rate, then give the length, then greater sign, and then the angle. Okay. Is it clear? Yes, sir. So again we go to the next part.
here it is being provided 45 degree. Just take, but we have to do from here. As it is being relative, as it is relative means our UCS being placed here, means our 0, 0 is being placed here, means this is the 0, this is the 90, this is the 180, and this is the 270 degree. But we have to certainly do like this. Then what will be the angle between this? What will be the angle? How to calculate this? We will have to calculate by just take an imaginary line, okay? And from here also, from the previous line, take an imaginary line. Then it will place here 90 degree, isn't it? यहाँ अगर मैं ये वाला 45 कर रहा हूँ और यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन क्रिएट कर रहा हूँ और सिमिलरली यहाँ से भी एक इमेजिनरी लाइन क्रिएट कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जा रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री हो जा रहा है, isn't it? हेलो? Yes sir. Yes sir. Yes. तो यहाँ तो ये वाला एंगल कितना हो गया? 45, क्योंकि एक ट्राइंगल का कितना होता है? 180 डिग्री होता है, isn't it? The angle provided in a triangle is 180. So तो ये 45 हुआ, तो मतलब यहाँ से मैं 0 से करूंगा तो मैं ये 270 के अंदर 45 आ गया, isn't it? 270 के अंदर 45 डिग्री आ रहा है। पहले तो मुझे एंगल देख लेना है और फिर जो 0 डिग्री से कितना कैलकुलेट होके आ रहा है वो हमको देखना पड़ेगा। तो ये 45 डिग्री 270 के अंदर आ रहा है। फिर क्या हो रहा है, यहाँ से भी देखो, ये डॉटेड लाइन यहाँ से भी क्रिएट करो इमेजिनरी और यहाँ से भी डॉटेड लाइन करो, तो ये भी एंगल 45 डिग्री हो जा रहा है, isn't it? ये भी 45 डिग्री हो रहा है यहाँ पे। सो मेरा कितना एंगल कितना हो जा रहा है, यहाँ से कितना हो जा रहा है? 270 प्लस 45, तब जाके ये मेरा लाइन होगा। इज इट क्लियर चंदन एंड ऑल? Yes sir. Yes sir. So at the rate, what is the length of the line? Is 30. At the rate 30 greater than sign, and then give the angle 270 plus 45. How much? 315. Enter. Okay. Then from here we have, यहाँ से क्या करना पड़ेगा? यहाँ से मैं एब्सोल्यूट कर सकूंगा या फिर रिलेटिव करूंगा? बताओ तो। ये वाला अगर मैं ये लाइन जो क्रिएट करूंगा तो यहाँ से ये रिलेटिव हो, ये एब्सोल्यूट हो सकेगा, हाँ कि ना? ये रिलेटिव हो, ये एब्सोल्यूट हो सकता है? ये जो 50 का लाइन है हो सकता है सर। कैसे हो सकता है बोलो? यहाँ पर मेरा तो लेंथ, ये वाला तो गैपिंग मेरा नहीं है। मुझे तो एब्सोल्यूट में क्या होता था, ये ओरिजिन से कैलकुलेट होता था, तो ये ओरिजिन से कितना का लेंथ हो रहा है ये तो मुझे पता नहीं, ये वाला लेंथ क्या पता है, तो यहाँ से मुझे रिलेटिव यूज कर लेना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो मतलब ये समझ लेना कि जहाँ पे देखना कि मुझे रिलेटिव एंगल आ जा रहा है तो उसके बाद हमको रिलेटिव यूज करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पहले मुझे लेंथ तो दिया नहीं है, हॉरिजॉन्टल लेंथ तो मेरा दिया नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल जब दिया नहीं है तो मुझे यहाँ से यहाँ पर मेरा ओरिजिन बैठा है, फिर एट द रेट देके 50,0 अगर देते हैं तो रिलेटिव से मेरा ये लाइन क्रिएट हो जाता है, isn't it? तो एट द रेट 50,0 एंटर। ओके, देन ये वाला एंगल कितना होगा बताओ? ये एंगल कितना होगा? ये लाइन का एंगल कितना हो जाएगा? चंदन से लेंथ तो दिया है मेरा, एट द रेट देके लेंथ तो दे सकते हैं, 30 डिग्री होगा सर। 30 डिग्री करेक्ट। ओम समझ में आया ये 30 डिग्री कैसे? क्योंकि ये 0 हर वक्त सोचना कि मेरा 0 डिग्री से ये लाइन का एंगल कितना हो रहा है। कहीं पे भी लाइन बैठाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता, एंगल जितना दे रहा है देने दो, तो 0 डिग्री से वो लाइन का एंगल कितना हो रहा है वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरा कितना हो जा रहा है? 30 डिग्री, isn't it? ओके, एट द रेट देन 30 हो गया। अभी नेक्स्ट क्या है? अभी बताओ ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? जो लेंथ 100 दिया हुआ है, ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा? तो 150 होगा सर। 150 होगा, क्योंकि 30 तो मेरा इधर से 180 से 30 तो चल जा रहा है, तो बचा कितना? 150। 0 डिग्री से मेरा 150 बच रहा है, isn't it?
शायद हमको लग रहा है ओम को थोड़ा दिक्कत हो रहा है क्या ओम? क्लियर है? Yes. No sir, one time अगर please say. देखो यहाँ से क्या हो रहा है, मेरा जो लाइन है ना, जो लाइन मेरा करना है, जो लाइन मुझे करना है वो पहले देखना, और दूसरा लाइन से जितना एंगल है वो देख लो। मतलब ये यहाँ से जैसे दिया हुआ है 30 डिग्री, तो ये वाला 30 तो आ जा रहा है, लेकिन मुझे कैलकुलेट कहाँ से करना पड़ेगा, ये 0 डिग्री से, क्योंकि मेरा यूसीएस मेरा एक्स वाई प्लेन यहाँ पर बैठ जा रहा है, क्योंकि ये रिलेटिव है, तो ये एक्स वाई यहाँ से बैठ रहा है, तो ये इधर कितना जा रहा है 0 डिग्री, ये 0 डिग्री हो रहा है ना, और स्ट्रेट में क्या होता है 90 डिग्री। Yes sir. हाँ, ये वाला कितना हो जाता है 180, और नीचे जा रहा है 180. तुम्हारा 270, isn't it? 270. तो देखो 180 के अंदर 30 डिग्री का ये लाइन ऊपर में बैठाया हुआ है, 180 के अंदर 30 डिग्री ऊपर बैठाया हुआ है, तो मेरा 0 डिग्री से कितना हो जा रहा है, 180 से 30 माइनस करेंगे तब ये लाइन क्रिएट होगा, Yes sir, 150. 150। क्लियर? Yes sir. So at the rate, I will at the rate 100 greater than 150 हो गया। अभी देखो इसके बाद ये वाला एंगल कितना होगा ओम बताओ तुम, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री से कैलकुलेट करना है, 0 से कितना हो रहा है, 0 से ये वाला लाइन, ये जो लाइन मुझे बनाना है 0 से कितना एंगल में बैठा रहा है, ये मेरा तो यूसीएस यहाँ पर 225. बैठ गया 225, क्योंकि ये 45 ऐड अप हो गया। Yes sir. ठीक है, सो एट द रेट 50, लेंथ 50 है, ग्रेटर देन 225, एंटर। इसके बाद देखो 135 दिया हुआ है, तो ये वाला लाइन कितना होगा, एंगल कितना होगा ये वाला का, ये जो 30 का है, तो ओम 180 होगा सर। हाँ ओम तुम बताओ कैसे हो रहा है, ये 180 कैसे होगा, देखो ये 135 है ना, इसको अगर मैं आर्बिटरी ऐसे लाइन एक तो क्रिएट कर रहा हूँ, और फिर यहाँ से भी आर्बिटरी क्रिएट कर रहा हूँ, तो ये क्या 90 डिग्री हो जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, ये 45 डिग्री हो जा रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर 45 पहले से दिया हुआ है। पिछले अगर यहाँ से अगर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो पिछले वाले से कनेक्ट करो और एक ट्राइंगल बना लो। ठीक है, एक ट्राइंगल बना लो जो कि राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, तो ये वाला कितना आ जा रहा है 45 डिग्री, क्योंकि ये 45 है, यहाँ पर 90 हो रहा है, तो ये भी 45 हो रहा है, isn't it? तो ये वाला कितना हो जा रहा है 90, तो 0 डिग्री से ये लाइन का लेंथ कितना हो जा रहा है, 0 डिग्री से ये लाइन का लेंथ कितना हो जा रहा है 180, पूरा सर्कल हाफ सर्कल हो जा रहा है, isn't it? हाँ, हेलो ओम, सर प्रॉब्लम ये हो रहा है, मैं बीच में सर मेरा नेटवर्क थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, तो इसके वजह से वो आवाज कट जाता है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ तो देखो ये बात देखो, नॉर्मली ये दिमाग में रख लो, मेरा जब भी एंगल आएगा तो रिलेटिव हमको करना है, ये तो हमको पता है, तो रिलेटिव में क्या होता है, मेरा ओरिजिन ट्रांसफर होता है, ये तो पता है हमको, isn't it? तो मुझे मेरा 0 डिग्री से, जो 0 डिग्री से यहाँ से ये जो लाइन मुझे क्रिएट करना है उसका एंगल कितना हो रहा है वो मुझे बैठाना पड़ेगा, सिंपल बात। तो 0 से मेरा ये लाइन का एंगल कितना हो जा रहा है 180, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है 180 डिग्री होगा, तो 30 Yes. at the rate 30 then 180, enter and then join the line, okay, enter। तो समझ में आ गया ऐसे करके कैसे करना है, मेरा स्केच कैसे बैठाना है, क्लियर? यस सर। तो इसके बाद मैं और एक तो करके दिखाता हूँ तो और क्लियर हो जाएगा। ये वाला स्केच मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ। अब ये वाला वैल्यू तुम लोग बताना, ठीक है, इसका वैल्यू जैसे जैसे होते जाएगा, कहाँ पे क्या यूज होगा तुम लोग बताना, कहीं पे दिक्कत होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। देखो ग्रुप में मैंने भेजा है ये वाला स्केच, सेम स्केच। तो यहाँ से तो स्टार्टिंग पॉइंट मेरा क्या होगा, देखो स्टार्टिंग पॉइंट पहले से दिया हुआ है 1,1,
मुझे यहाँ पर 0,0 से स्टार्ट नहीं करना है, 1,1 से स्टार्ट करना है। ओके, तो अभी पूरा स्केच का वैल्यू बताते जाना, ठीक है, मैं करते जाऊंगा। अगर कहीं पे दिक्कत होगा तो मैं वहाँ पर डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो एल एंटर कर रहा हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है बताते जाओ, स्केच देखो और बताते जाओ। 1,1 1,1 एंटर। अभी दूसरा वाला 4.1,1 4.1,1 एंटर। इसके बाद उसके 4.5,2.2 अब अभी अभी यहाँ लेंथ है, पहले लेंथ, ये वाला लेंथ कौन बताएगा, ये 2.3 का, ये वाला लाइन का 2.3। जैसे 2.3,0 तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अगर कैलकुलेशन करने जाए तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर एब्सोल्यूट कर लेते हैं, @2.3,0। ठीक, अभी एंगल है, तो एंगल बताओ कितना है, लेंथ और एंगल बताओ। 30 सर, 30 हो रहा है, 30। तो @1.4 ग्रेटर देन 30। अब इसके बाद @0.2.1 0,2.1 यस, डन। इसके बाद वाला बताओ। नहीं, सर 120 डिग्री हो। 120, यस 120। तो 120 किस दोनों को समझ में आया, 120 कैसे आएगा इस वाले में? अगर ये स्ट्रेट, हाँ ये वाला अगर मैं स्ट्रेट लाइन कर लेता हूँ तो ये 90 चल जा रहा है, ये 60 हो रहा है, तो 180 से 60 अगर अंदर आ गया तो 0 से कितना हो जाएगा तुम्हारा 120। क्लियर? यस सर। तो @1.6 greater than 120। अभी इसके बाद 1.30 फिर से बताओ कितना होगा। @1.3,0 1.3,0 देंगे तो ये पॉजिटिव साइड में जाएगा, तो ये नेगेटिव में इधर माइनस 1.3,0 नेगेटिव में करना है मुझे, इधर जाना है। अभी नीचे, अभी ये वाला बताओ। 0,-1.4 अभी अब इसका एंगल बताओ, क्या का एंगल बताओ। सर 135 एंगल सर। हाँ, तो @2.2 ग्रेटर देन 135। अभी इसके बाद -1,0। 0 अब इसके बाद ये वाला एंगल बताओ। सर 225 सो @2 1.5 greater than 225 225 और इसके बाद @-1,0। यस अब इसके बाद अभी एंगल बताओ ये वाला। सर 300 360 जा रहा है उधर, तो 300 पॉजिटिव साइड से देख रहे हैं हम लोग। 2.3 ग्रेटर देन 300। एंड देन लास्ट में यहाँ पर जैसे दिया हुआ है, यहाँ पर जस्ट ज्वाइन कर दो, क्योंकि यहाँ पर वन लेंथ मुझे दिया
यहाँ पर दिया नहीं है, तो ये वाला जस्ट ज्वाइन कर दो, जस्ट यहाँ पर एंड पॉइंट लेके ज्वाइन कर देना है। अभी एंटर। यस सर। ऐसे करके मुझे, तो ऐसे करके मुझे पोलर का यूज करना पड़ेगा। तो पोलर का मैं कुछ और स्केच दे दूंगा, तो वो वाला तुम लोग कर लेना, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक में जा रहा हूँ। तो ये क्लियर है अभी? जी यस सर। सर। Fine. तो मैंने अभी तक कितना क्या क्या किया है, लाइन किया है ना, जस्ट लाइन, और सर्कल शायद किया है ना, सर्कल किया सर्कल, है। यस सर, सर्कल। सर्कल 6 टाइप का सर्कल्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। सर 6 टाइप का कंप्लीट नहीं किया सर। जस्ट एक दो दिखाए थे ना। यस अच्छा सर, अच्छा, यस। ठीक, ठीक है। तो उसके पहले हम लोग पॉलीलाइन में जाते हैं। तो देखो लाइन और पॉलीलाइन में डिफरेंस क्या होता है। लाइन में सिंगल सिंगल लाइन क्रिएट होता है। जैसे कि मैं लाइन अगर लेता हूँ, जैसे एल एंटर करो, 0,0 एंटर, 50 फिर हो जाएगा, तो शायद ऐसे आर्बिट्ररी बना रहे हैं। तो देखो ये वाला सिलेक्शन जब करेंगे तो सिंगल लाइन होता है, सिलेक्शन सिंगल सिंगल लाइन, इजंट इट? यस सर। तो यहाँ पे अगर पॉलीलाइन, पॉलीलाइन क्या होता है, पॉलीलाइन इज अ ग्रुप ऑफ लाइंस, इट कैन बी आर, और सर्टेन ऑब्जेक्ट क्लोज टू ऑब्जेक्ट रहा, और अगर बहुत सारा ऑब्जेक्ट एक साथ करना है तो मैं बाय द हेल्प ऑफ पॉलीलाइन से करते हैं। जैसे कि पॉलीलाइन का कमांड होता है PL, ठीक है, PL एंटर। जैसे लाइन सिलेक्ट क्रिएट करते हो वैसे लाइन क्रिएट करते जाना, 0,0, फिर नेक्स्ट लाइन हो गया तुम्हारा 60,0 एंटर, नेक्स्ट यहाँ पर क्रिएट किया। अब यहाँ से मैं आर्क भी कर सकता हूँ, लाइन की पॉलीलाइन के अंदर मैं आर्क भी कर सकता हूँ। आर्क के लिए कमांड होता है ए, पहले ए करना, ए एंटर करना, फिर देखो आर्क क्रिएट हो चुका है। आर्क यहाँ पर देख पा रहे हो, आर्क क्रिएट हो चुका है। जस्ट यहाँ पर कोऑर्डिनेट दे देना, कितना लेंथ है और कितना एंगल में प्लेस किया है, जस्ट प्लेस कर दो। और फिर से लाइन में मुझे जाना है तो फिर से एल एंटर करना, एल एंटर कमांड के अंदर ही करते रहना, अंदर ज्वाइन कर देना, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा पॉलीलाइन, एंटर कर दो। पॉलीलाइन करने से क्या होता है, देखो ये जब सिलेक्शन करते हैं ना हम लोग, तो ये क्लोज्ड ऑब्जेक्ट हो रहा है और यहाँ पर सिलेक्शन एक में ही हो रहा है, इट्स अ वन ऑब्जेक्ट, इजंट इट? तो डिफरेंस समझ में आया पॉलीलाइन और तुम्हारा सिंगल लाइन में? हम लोग यस नॉर्मली सर। ऐसे भी कर सकते, जी ऐसे सर। भी कर सकते, लाइन से भी कर सकते थे, लेकिन मुझे अलग अलग पार्ट्स होता है। तो लाइन से पॉलीलाइन, यहाँ पर क्वेश्चन आ ही सकता है कि लाइन से पॉलीलाइन कैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। हम लोग लाइन से पॉलीलाइन भी कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ ज्वाइन कमांड। जैसे कि एल एंटर किए, नॉर्मली यहाँ से लाइन बना लिए, जस्ट लाइन में तो जस्ट लाइन ही बनता है और कुछ नहीं बनता है। तो अभी आर्क भी बना लेते हैं, तो कुछ आर्क सडनली आर्क, अभी आर्क नहीं दिखाएं तो आर्क पहले दिखा, ऐसे बना लेते हैं आप लोग। ऐसे सडनली आर्क बनाए, फिर या ये वाला यहाँ से, फिर ये एंड पॉइंट से लाइन लो, टेक अ लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट and just suddenly join it. But as we did with the help of line and arc, we haven't used the command polyline. तो यहाँ पर सिलेक्शन करने से क्या हो रहा है, देखो अलग अलग पार्ट्स हो रहा है। तो इसको पॉलीलाइन में कन्वर्ट कैसे करें, बाय द हेल्प ऑफ ज्वाइन। तो ज्वाइन का कमांड क्या होता है, जे, ठीक है, जे। तो ये ज्वाइन जो है हम लोग 3D में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम लोग को ज्वाइन कमांड याद रखना, ठीक है। ज्वाइन, जे एंटर। इसको पॉलीलाइन में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट जो जो ऑब्जेक्ट को एक साथ करना चाहते हो, जस्ट सिलेक्ट ऑल एंड देन एंटर। देखो यहाँ पर नीचे क्या आ रहा है, मेरा हिस्ट्री में क्या आ रहा है, 4 ऑब्जेक्ट्स कन्वर्टेड टू 1 पॉलीलाइन। F2 से फिर से हम लोग देख सकते हैं, F2 से देखो 4 ऑब्जेक्ट्स कन्वर्टेड टू 1 पॉलीलाइन, इजंट इट? तो देखो ये वाला सिलेक्शन कर रहे हैं तो ये क्या आ रहा है, पॉलीलाइन आ रहा है। तो लाइन से पॉलीलाइन हम लोग कैसे करें, बाय द हेल्प ऑफ ज्वाइन। ज्वाइन। और इसको तो पॉलीलाइन से भी हम लोग लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ एक्सप्लोड। ज्वाइन का जस्ट द रिवर्स काम करता है एक्सप्लोड। एक्सप्लोड का कमांड होता है एक्स, एक्स एंटर, एंड जस्ट सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिए, अब सेम प्रोसेस एंटर कर दो। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर आएगा कि वन ऑब्जेक्ट हैज बीन एक्सप्लोडेड, जस्ट सिलेक्ट करो। अभी देखो ये सब सिंगल लाइन में कन्वर्ट हो चुका है, लाइन आर्क, इजंट इट? तो क्लियर है ये बात, कैसे एक लाइन को पॉलीलाइन में कन्वर्ट करना है
पॉलीलाइन क्या होता है, और लाइन से पॉलीलाइन से और लाइन में कन्वर्ट करने से क्या क्या कॉमन, ज्वाइन एंड एक्सप्लोर। ओके क्लियर। Yes. इसके बाद देखो सर्कल का मेन रिक्वायरमेंट्स क्या होता है, सर्कल का मेन रिक्वायरमेंट्स होता है सेंटर पॉइंट और रेडियस, इजंट इट। तो सर्कल का कमांड होता है सी एंटर। तुम शायद यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन हम लोग कमांड बेस्ड सॉफ्टवेयर है तो कमांड लेके ही करेंगे, क्योंकि दूसरा सॉफ्टवेयर में कमांड यूज नहीं होता है, वहाँ पर जस्ट यहाँ से लेके हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर अगर तुम लोग का एक्सपीरियंस जब हो जाएगा, हैबिचुएटेड हो जाओगे सॉफ्टवेयर के साथ, तो यहाँ से तुम लोग सिलेक्ट करके कर सकते हो। तो एज अ फर्स्ट हम लोग जब कर रहे हैं इनिशियल्स है हम लोग, तो अभी कमांड से ही करो, ठीक है। सर्कल का कमांड है सी एंटर करने से यहाँ पर देखो कमांड लाइन में क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई द सेंटर पॉइंट। तो सेंटर पॉइंट क्या हुआ, 0,0 कुछ भी देते हैं। सेंटर पॉइंट हो गया मेरा ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट का लेना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या पूछ रहा है देखो, स्पेसिफाई द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस माइट बी 60, एंटर। तो ये सर्कल का रेडियस हो गया 60। ओके क्लियर। तो ये फर्स्ट टाइप का सर्कल हम लोग बना चुके हैं। अब दूसरा देखो, अगर कहीं पे दिया रहा कि डायमीटर है, तो मुझे फिर से रेडियस के लिए डिवाइड बाय 2 नहीं करेंगे, तो ये वाला सेंटर डायमीटर ही यूज करेंगे। ओके कहीं पे डायमीटर दिया रहेगा, शायद कहीं पे रेडियस दिया रहेगा, तो जस्ट फॉर द कन्वीनियंस कंफर्ट लेवल जोन के लिए हाई करने के लिए हम लोग यहाँ पर ऑटोकैड में दिया गया है। तो सर्कल का सेम सी एंटर करना, सी एंटर करने के बाद फिर से सेंटर पॉइंट देना, जैसे कि 50,50 दे रहे हैं हम लोग एज अ सेंटर पॉइंट। यहाँ पर सेंटर पॉइंट दे चुके हैं, देख पा रहे हो। अभी मुझे यहाँ पर क्या पूछ रहा है, रेडियस पूछ रहा है, लेकिन मुझे क्या देना है, डायमीटर। तो डायमीटर के लिए फिर से डी करना है, डी एंटर। डी एंटर करने के बाद क्या पूछ रहा है देखो, स्पेसिफाई द डायमीटर ऑफ द सर्कल, इजंट इट। तो Yes. यहाँ पर डायमीटर मैं दे सकता हूँ 150। ओके बस क्लियर, इजी है। तो इसके बाद देखो क्या है, 2 पॉइंट से क्या पूछ रहा है, 2 पॉइंट से मतलब हो रहा है 2 पॉइंट के रेस्पेक्ट में यहाँ पर कोई सेंटर पॉइंट रह जाएगा, ये वाला जस्ट 2 पॉइंट के रेस्पेक्ट में सर्कल बनेगा। जैसे अगर मैं 2 पॉइंट्स दे दो, मुझे 2 क्वाड्रेंट देना पड़ेगा। अगर 2 क्वाड्रेंट दे देते हैं तो वो डायमीटर बन जाता है ना। अगर मैं सर्कल का 2 क्वाड्रेंट, दोनों साइड का हॉरिजॉन्टल क्वाड्रेंट देते हैं सर्कल का, तो वो एक सर्कल बन जाता है। तो कैसे करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ कमांड सी एंटर करते हैं, press the C enter. Here we don't use the specify the center point. We will go to the 2 point. Can you see in the command line 2.2p? 2p देख पा रहे हो? तो 2p just click on the 2p or give the command 2p. Okay, just enter it out. And then यहाँ पर क्या पूछ रहा है देखो, specify the first end of the circle diameter. तो first end point might be 0,0 मैं दे रहा हूँ, एंटर करो। अभी क्या पूछ रहा है देखो, स्पेसिफाई द सेकंड एंड पॉइंट। सेकंड एंड पॉइंट शायद 120,0 देता हूँ, तो ये एक सर्कल बन गया, isn't it? तो मेरा सर्कल का डायमीटर कितना हो गया बताओ। अगर 120,0 दे रहा हूँ मैं, फर्स्ट पॉइंट में दे रहा हूँ 0,0 और सेकंड पॉइंट दे रहा हूँ 120,0, तो डायमीटर कितना हुआ 120। तो यहाँ पर मैं मुझे सर्कल शायद यहाँ पर मैं कमांड से दे रहा हूँ, या फिर मेरा अगर जैसे कि ये वाला लाइन क्रिएट किया हुआ है, ओके आर्बिट्ररी मैं अभी क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पर भी मेरा लाइन क्रिएट किया हुआ है। तो अभी मैं अगर मैं सी एंटर किया और 2p एंटर किया, अभी मैं फर्स्ट पॉइंट शायद ये वाला ले रहा हूँ। यहाँ पर कोई पॉइंट मुझे पता नहीं है, जस्ट क्लिक करो और नेक्स्ट यहाँ पर फिर से लेफ्ट क्लिक करो, तो मेरा ये सर्कल हो गया। तो ये वाला क्या डिफाइन कर रहा है, मतलब ये लाइन के रेस्पेक्ट में मेरा ये सर्कल टच करके, ये वर्टेक्स को टच करके मेरा सर्कल क्रिएट हो रहा है, इजंट इट? ओके Yes. अभी 3 पॉइंट्स में भी सेम चीज है। 3 पॉइंट्स में भी मुझे यहाँ पर देखो, मेरा दूसरा जो इसके बाद जो है मेरा 3 पॉइंट्स में भी सेम है। 3 पॉइंट्स में मुझे सी एंटर, अभी 3 पॉइंट के लिए 3p एंटर।
अभी क्या पूछ रहा है देखो, स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट ऑन सर्कल। फर्स्ट पॉइंट शायद मैं दे रहा हूँ यहाँ पर 0,0 एंटर। फर्स्ट पॉइंट 0,0 एंटर। सेकंड पॉइंट अभी क्या पूछ रहा है देखो, स्पेसिफाई द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट माइट बी 120,120। अभी सेकंड पॉइंट मैं दे चुका हूँ, अभी थर्ड पॉइंट पूछ रहा है। अभी थर्ड पॉइंट दे दो 180,0। तो देखो ये सर्कल तीनों पॉइंट को टच करके ये सर्कल बना है। मैं शायद यहाँ पर लाइन से भी कर सकता हूँ, ऐसे हो गया तुम्हारा ये पॉइंट, एक लाइन हो गया। भी कर सकता हूँ, सर्कल कर लो 3C एंटर, 3P एंटर। फर्स्ट पॉइंट शायद ये वाला ले रहा हूँ, सेकंड पॉइंट ले रहा हूँ ये, और थर्ड पॉइंट यहाँ पे। तो ये वाला कौन कैसे हम लोग समझ पा रहे हैं? जस्ट ये पॉइंट को टच करके, ये वर्टेक्स पॉइंट को एंड पॉइंट को टच करके मेरा सर्कल जो बनेगा वो 3 पॉइंट सर्कल से बनता है। इज इट क्लियर? यस सर। सर अभी देखो टेंजेंट रेडियस। टेंजेंट रेडियस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पर क्या होता है नॉर्मली टेंजेंट रेडियस में, अगर मेरा कोई सर्कल बन रहा है, अगर कोई सर्कल बन रहा है, पहले क्या हो रहा था 2 पॉइंट और 3 पॉइंट में क्या हो रहा था, वर्टेक्स को टच कर रहा था, इजंट इट? लाइन का रेस्पेक्ट में वर्टेक्स को टच कर रहा था। लेकिन अभी ये सर्कल जो बनेगा वो मेरा लाइन का टेंजेंशियली क्रिएट करेगा। टेंजेंशियली टच करके लाइन का जो एज है, एज को टच करके सर्कल बनेगा। तो यहाँ पर जैसे मैं दो लाइन क्रिएट, विदाउट लाइन वी कांट क्रिएट अ टेंजेंट रेडियस सर्कल। सडनली टेक दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ऐसे मैं एक सर्कल, एक लाइन बना लिया। अभी C एंटर करो। अभी टेंजेंट रेडियस यहाँ से देख पा रहे हो, TTR टेंजेंट रेडियस नीचे मेरा कर्सर जहाँ पर प्लेस किया हुआ है देख पा रहे हो। यस ये सर। वाला भी क्लिक कर सकते हो या फिर TTR एंटर कर सकते हो। TTR एंटर करने के बाद यहाँ पर क्या पूछ रहा है देखो, स्पेसिफाई द फर्स्ट टेंजेंट ऑफ सर्कल। फर्स्ट टेंजेंट शायद यहाँ पर मैं प्लेस कर रहा हूँ, देखो एक टेंजेंट से डिफर्ड टेंजेंट यहाँ पर दिखा रहा है। कहीं पे भी क्लिक करो, मेरा लाइन पे कहीं पे भी क्लिक करो। और नेक्स्ट अभी क्या पूछ रहा है देखो, सेकंड टेंजेंट। तो शायद मैं यहाँ से ले रहा हूँ सेकंड टेंजेंट। अभी क्या पूछ रहा है देखो, स्पेसिफाई द रेडियस। यहाँ पर रेडियस दे दो 50, एंटर करो। देखो मेरा लाइन कहीं पे भी मैं टच किया, लेकिन ये टेंजेंशियली वहीं पे प्लेस होगा जहाँ पे ये फिट होगा। रेडियस टेंजेंशियली जहाँ पे मेरा रेडियस फिट होगा वहीं पे ये प्लेस होगा। ओके क्लियर? ये वाला बात, ये वाला क्लियर है? यस सर। इसके बाद देखो अभी क्या है, इसके बाद हो रहा है तुम्हारा 10-10-10। तो 10-10-10 मतलब पहले तो हमको रेडियस देना पड़ रहा था, लेकिन अभी रेडियस भी नहीं देना है। जस्ट तीनों लाइन को टच करके, जैसे कि मैंने ये लाइन बना लिया, क्लिक करके एंटर। फिर तो 10-10-10 का कोई कमांड नहीं होता, जस्ट सर्कल से सिलेक्ट करो और 10-10-10 सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद अभी देखो क्या 10-2, जस्ट क्लिक ऑन द सर्कल लाइंस, सेकंड यहाँ पर क्या बोला, सेकंड पॉइंट ऑफ द सर्कल 10-2, यहाँ पर क्लिक किया। अभी फिर से यहाँ पर क्लिक करें। तो ये सर्कल कैसे हुआ, ये लाइन का रेस्पेक्ट में जो सर्कल फिट होगा वहीं पे प्लेस होगा। यहाँ पर कोई रेडियस का भी मैटर नहीं करता है। ये वाला नॉर्मली मेरा जो गैपिंग रहेगा वही गैपिंग में ये डायमीटर और सर्कल बन जाएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो इसके बाद होता है नॉर्मली आर्क के पहले हम लोग 9 टैक्स का आर्क होता है, तो आर्क के पहले हम लोग जाते हैं रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल का कमांड होता है REC फॉर रेक्टेंगल, REC एंटर। एंड देन रेक्टेंगल में फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट एंड देन नेक्स्ट डायगोनली कॉर्नर पॉइंट जो दोगे वो मेरा लेंथ विड्थ का आ जाएगा। फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट मैं यहाँ पर क्या पूछ रहा है देखो, स्पेसिफाई द फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। 0,0 इज माय फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। अब अभी देखो मेरा लेंथ और विड्थ पूछ रहा है,
तो मेरा यहाँ से यहाँ पर क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई द अनदर कॉर्नर पॉइंट। तो ये जो मेरा कर्सर जहाँ पे प्लेस किया वो कॉर्नर पॉइंट मुझे देना पड़ेगा। जैसे कि x का क्वाड्रेंट मैं दे रहा हूँ 60, 50, मतलब 60 हो गया तुम्हारा x का लेंथ और y का विड्थ हो गया तुम्हारा 50। एंटर कर, देखो मेरा रेक्टेंगल बन चुका है, isn't it? तो रेक्टेंगल और एक तरीके से भी बना सकते हो। We can create another type of we can create a rectangle by another process also. Just like press the REC enter and specify the first point as 0,0 enter, and we have to certainly give the dimensions. यहाँ पर मुझे dimensions देना पड़ेगा। यहाँ पर देख पा रहे हो dimensions नीचे, तो dimensions के लिए D enter करना, D enter। यहाँ पर क्या पूछ रहा है देखो, what is the command line asking for? Specify the length for rectangle. Length would be 60. Just enter. And what will be the width? Width will be 100. Enter. तो देखो ये वाला कहीं पे प्लेस नहीं हो रहा है, ये क्वाड्रेंट, क्योंकि मैंने क्वाड्रेंट नहीं दिया था, जस्ट लेंथ और विड्थ दिया है, isn't it? लेंथ विड्थ फिक्स हो गया, लेकिन ये कहाँ पे बैठेगा ये मुझे पता नहीं। जस्ट जहाँ पे बैठेगा वो वहाँ पे मेरा कर्सर को लेफ्ट क्लिक कर देना, वहाँ पे बैठ जाएगा। ठीक है, प्रोसेस में कोई ओके क्लियर? यस सर। इसके बाद हो रहा है तुम्हारा पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन हो रहा है तुम्हारा 2 टाइप्स का पॉलीगन होता है। पॉलीगन स्टार्ट कितना साइड से होता है, कोई बता सकता है? पॉलीगन कितना साइड से स्टार्ट होता है? चंदन, ओम, बता। पॉलीगन का हाँ 3 साइड से होता है, ठीक है। ट्रायंगल से मेरा पॉलीगन स्टार्ट हो जाता है, तो देन कम्स द हमारा स्क्वायर भी हो गया पॉलीगन के अंदर में, फिर हेप्टागन, ऑक्टागन, डेकागन, देन सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉलीगन का कमांड हो रहा है POL, एंटर। एंटर करने के बाद यहाँ पर क्या पूछ रहा है, पहले यहाँ पर नीचे हर वक्त जब भी कमांड देना, कमांड के नीचे मेरा कमांड लाइन में क्या पूछ रहा है वो मुझे देखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ साइड्स में भी 3, 4, 5 जो भी 6 करने के बाद यहाँ पर क्या पूछ रहा है देखो, स्पेसिफाई द सेंटर पॉइंट, सेंटर ऑफ द पॉलीगन। सेंटर माइट बी 50, अभी यहाँ पर देखो 2 टाइप्स का पॉलीगन होता है, एक होता है इंस्क्राइब, एक होता है सब्सक्राइब। इंस्क्राइब में सर्कल, इंस्क्राइब सर्कल मतलब सर्कल पॉलीगन के अंदर रहेगा, मतलब यहाँ पर रेडियस देना पड़ेगा मुझे। ये बात क्लियर हो गया? इंस्क्राइब में ले रहा हूँ, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो रेडियस तुम दोगे ये वाला मुझे पॉलीगन सर्कल के अंदर क्रिएट होगा, इसलिए इंस्क्राइब सर्कल। ओके, तो शायद मैं दे दो 30, रेडियस दे रहा हूँ मैं 30, एंटर। अभी देखो 30 सही है कि नहीं, मुझे मैं यहाँ से सर्कल रेडियस ले रहा हूँ, ये वाला सेंटर पॉइंट है मेरा, अभी मैं रेडियस दे रहा हूँ 30। तो देखो यहाँ पर कैसे हुआ, तो ये वाला हो गया मेरा इंस्क्राइब्ड सर्कल पॉलीगन। क्लियर? जहाँ पे मेरा जो वर्टेक्स पॉइंट है, वर्टेक्स पॉइंट मेरा सर्कल को टच करेगा। ओके, क्लियर है? यस सर। तो इसके बाद जो है मेरा सब्सक्राइब, मतलब इसके जस्ट द रिवर्स, वहां पर सर्कल अंदर होगा, मतलब ये सर्कल को, ये जो एज है, जो पॉलीगन का एज होगा वहां पे सर्कल अंदर प्लेस होगा, सर्कमस्क्राइब सर्कल पॉलीगन। ओके, तो यहाँ पे पॉलीगन का कमांड POL पहले तो देना पड़ेगा, एंटर करते हैं। तो साइड्स दे रहे हैं तुम्हारा 3, एंटर। 3 मतलब ट्रायंगल बना रहे हैं हम लोग, ये तो क्लियर है। अभी सेंटर पॉइंट शायद दे रहे हैं तुम्हारा 120, 120, एंटर। भी क्या पूछ रहा है देखो, ये वाला सर्कमस्क्राइब हम लोग ले रहे हैं, सर्कमस्क्राइब अबाउट। ये वाला डायमीटर मैं क्या दे रहा हूँ, डायमीटर देखो, डायमीटर मैं दे रहा हूँ तुम्हारा, सॉरी रेडियस दे रहा हूँ मैं यहाँ पर 30 दे रहा हूँ, ठीक है, एंटर करो। तो ये 30 हुआ है। अभी देखो सर्कल जब मैं बनाऊंगा, इसका जो ज्योमेट्रिक सेंटर है, यहाँ पर ज्योमेट्रिक सेंटर में 30 रेडियस, यहाँ पर कैसे क्रिएट हो गया, क्लियर है?
इज इट क्लियर? यस कोई सर। Fine. तो बाकी जो कमेंट्स है वो बाद में करेंगे क्योंकि हम लोग को स्केच भी करना है। स्केच के लिए ये सब मेन रिक्वायरमेंट्स है। अब इसके बाद जो है मेरा मेन कंपोनेंट्स जो जो यूज करना है आज के रेस्पेक्ट में हम मैं बता दे रहा हूँ, वो है मेरा ट्रिम। मतलब जैसे कि मेरा एक्स्ट्रा पोर्शन हो गया, वो मुझे ट्रिम करना है। बाय द डिलीट से तो पूरा ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाता है, isn't it? अगर ये जैसे कि ये पॉलीलाइन है, तो ये पॉलीलाइन को मैं एक्सप्लोर से एक सेंटर कर देते हैं तो एक्सप्लोर हो जाता है। ये अलग अलग हो गया, लेकिन शायद पकड़ो कि ऊपर वाला ये ऊपर का जो ट्रायंगल का ऊपर का पोर्शन है सर्कल से, ये वाला मुझे ट्रिम करना है, डिलीट नहीं करना है। नीचे वाला पोर्शन मुझे जरूरत है, तो यहाँ पर ये ट्रिम का कमांड हो रहा है TR, एंटर। तुम्हारा नॉर्मली 2021 ऑटोकैड का 2021 से नीचे का वर्जन लोअर वर्जन सिस्टम, तो वहाँ पर TR डबल एंटर करना। और अगर 2021 और 22 है तो जस्ट TR सिंगल एंटर। यहाँ से भी तुम सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो ट्रिम अभी ट्रिम करो जहाँ पे नहीं, जो वाला प्रोसेस नहीं चाहिए, जस्ट उसके लाइन के ऊपर क्लिक टच करो। देखो यहाँ पर एक प्रीव्यू आ रहा है कि वो वाला गायब है, लेकिन अभी तक ये गायब नहीं हुआ है, isn't it? तो ये वाला जस्ट क्लिक करो, लेफ्ट क्लिक, जो जो जरूरत नहीं है ट्रिम। ओके, ये पोर्शन आगे मैंने ट्रिम कर दिया, ठीक है। तो जैसे ये पोर्शन हो गया, मैं इस वाला को भी मैं